सर ये क्वेश्चन 2K18 19 2K18 का है सर। 2K18 फर्स्ट सेमेस्टर। ओके थैंक यू। Whenever I teach you, I keep in my mind that several times it happened, which I showed to you in my all previous classes, that questions are repeated in so many cases. That is why again and again in every topic I tried my best to show you that this question was asked this year in this sem, and again the same question was asked in this year this sem. You have yourself observed that. That is why I am interested in previous year examination question, because I have seen in so many cases that the question usually are asked in just exact form or sometimes in repeated form. Uh, I'm just going on. This is the only question which has been asked once and only once in 2K18 first semester. I'm not watching any repeated form. Let me confirm about that. And I think that this question was not repeated. Yes, yes, yes. This question was repeated in BTech second semester special examination 2020. And now you can note it down. It is question number 3 of full length, I mean 14 marks. This is write a letter of resignation. Write a letter of resignation from the membership of from the membership of from the membership of a health club, a health club, full stop. Invent the necessary details. Invent the necessary details. Invent the necessary details. Now it is very obvious that only this question has been asked. My sound is not audible. What is happening? Okay, okay. Uh, um, giving you details. This is question number 2K18. Here a question has been asked. Write a letter of resignation. इस्तीफा का एक लेटर लिखें फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के पद से अज्यूम अदर डिटेल्स. आप अदर डिटेल्स ना कर लें, खुद से बना लें वगैरह वगैरह. और अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2K20 स्पेशल एग्जामिनेशन सेकेंड टर्म. राइट ए लेटर ऑफ रेजिग्नेशन. इस्तीफा का एक लेटर लिखें फ्रॉम द मेंबरशिप, सदस्यता से, ऑफ ए हेल्थ क्लब के. इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स. अपने से ही खोज लें जरूरी डिटेल्स आपको देनी. इन बोथ केसेस वी फाइंड दैट partly they are interested to know whether you can draft such questions or such application or not. Their motto here is to check your writing capability, whether you can draft those questions or not. So I must say you that usually it happens that
Resignations letters are written as you write any other applications. It is almost same. You cannot say it is different from that. Here, your prime motto is that you endorse those applications to the authority. Just take the case of me. If I have to resign from the post of assistant professor in GC Vaishali, my right now appointing authority is principal. Obviously, my address will be to that. As everything is changing, the format is also changing. Nowadays, I find that they write letter of resignation in different way. Do you know what should be written first? Can you say what should be written first? Can you say what should be written first? Don't know, sir. नो। सबसे पहले हम फ्रॉम लिखते हैं, लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम ऊपर में फ्रॉम लिखेंगे, बिकॉज यू आर एग्जीक्यूटिव एंड योर इंडोर्समेंट शुड बी फ्रॉम अमित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हाट्सएवर, जीसी वैशाली, ये फर्स्ट होगा। देयर आफ्टर अमेरिकन पैटर्न अगर हम देखें तो योर डेट विल बी देयर। यूजुअली हम लोग ट्रेडिशनल वे में लेफ्ट में डेट देते हैं, बट द न्यू पैटर्न सेज दैट आफ्टर फ्रॉम योर डेट शुड बी देयर। उसके ठीक नीचे हम लिखेंगे 5 जून टू के या जून 5 2021। देयर आफ्टर लेफ्ट से ही चल रहा, एवरीथिंग इज बीइंग रिटन ऑन लेफ्ट साइड टू द पर्सन टू whom you will tender your resignation, and it will vary. Had I been regular, I would have sent it to secretary or director. It depends on the procedure. So every time the application will be endorsed to different higher authorities, especially those authorities who have given appointment letter or a chance of appointment. Did you understand, Rudra Pratap? रुद्र, मैं ये कह रहा हूं कि आपको जब एड्रेस करना होगा तो एड्रेस उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है। तो मेरी अपॉइंटिंग अलग कैपेसिटी में है। माई कॉम्पिटेंट अपॉइंटिंग ऑथोरिटी इज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल। Obviously, I will tender my resignation to him. But had I been on other position, it would have been addressed to that concerned authority. So it will differ time to time and situation to whom you have to tender your resignation letter. तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं टेंडर कर रहा हूं टू द प्रिंसिपल GEC वैशाली, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मनो लिखते हैं आप। एंड आफ्टर दैट, if you are interested, only then you can write subject. Otherwise, frankly speaking, अब सब्जेक्ट भी लोग नहीं लिखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे रिगार्डिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम द post dash dash dash
मैं नहीं जानता कि इस समय आपको कौन से पोस्ट के लिए ये स्टेप उठाना पड़े। एनीवे, मैं हूं कि मैं मैनेजर की कैपेसिटी में ग्रीन एकर्स कंपनी में काम कर रहा हूं या सम कंपनी में काम कर रहा हूं। ड्यू टू फैमिली रिलोकेशन, family relocation means, do you understand what I mean to say? Shruti, tell me what is the meaning of family relocation? Shruti, answer me. What is the meaning of नहीं पता। family? हाँ, ठीक है। रीलोकेट का मतलब होता है पुनः स्थापित होना। लोकेट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह में आप रहती हैं या रहते हैं। रीलोकेट का मतलब नाउ यू हैव शिफ्ट देयर। तो रेजिग्नेशन लेटर में इस बात का ध्यान रखें कि रेजिग्नेशन जब कभी भी आते एक जस्टिफाइड कारण होना चाहिए और लड़ने वाला कारण नहीं। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल काम करना चाहते, यू आर टोटली इंटरेस्टेड इन। आपकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको उन्होंने आंसर में लिखा है कि इन्वेंट द रीजन या अंडरस्टैंड द मैटर, कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ मीन्स अदर डिटेल आपको खुद बनाना है। कोई आदमी अपनी नौकरी क्यों छोड़ना चाहेगा? जो रीजन होगा वो रीजन होगा। मैंने यहाँ पर रीजन ये बनाया कि फैमिली रिलोकेशन, फैमिली रिलोकेशन, आई एम अज्यूमिंग आई एम ग्रोइंग old, I am growing old, I am growing old, and my family is settling day by day, and they are settling somewhere. मेरी फैमिली में मेरे बच्चे सेट कर गए दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, आई डोंट नो। कहीं उनका रिलोकेशन हो गया। बाई एंड बाई ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली हैव शिफ्टेड। अब सारे लोग वहां शिफ्ट हो गए, मैं यहाँ अकेला हूं, बूढ़ा हो रहा हूं और मेरे पास अब एक ही दबाव है कि यू कम, एंड एवरी मेंबर ऑफ माई ओन फैमिली इज डिमांडिंग दैट इन पेंडेमिक और इन रेयर सिचुएशन यू आर ग्रोइंग ओल्ड, कम टू मी। अब ऐसी स्थिति में मैं किसी पोस्ट पर हूं तो आई एम फोर्स टू रिजाइन। मेरी मजबूरी होगी कि मैं अकेले नहीं रह सकता, साथ दिक्कतें होंगी, खाने से लेकर देखभाल तक की। आई एम फोर्स टू रिजाइन। इस तरह को एज मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया है और इसको ये मानकर लिखा है कि मैं अपने संस्थान के एम्प्लॉयर को एक लेटर लिख रहा हूं कि मेरी अब परिस्थिति ऐसी नहीं है सर कि आई शुड कंटिन्यू, मैं इस पद को आगे रख सकूं, ये जिम्मेदारी चला सकूं। मैं अकेला हूं, मेरी सेटल कर गई है, बेंगलोर में सेटल कर गई है, समवेयर किसी जगह, एब्रॉड ही मान लीजिए, एब्रॉड ही सेटल कर गई है, तो मैं अकेले अब यहाँ नहीं रह सकता। दे आर कॉलिंग। इसको आधार बनाकर आई एम ड्राफ्टिंग यू। अब ये सब कुछ करने के बाद आप ठीक लेफ्ट में लिखेंगे डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, जो चाहे लिखें। वैसे हम लोग प्लेन तौर पर सिर्फ सर ही लिखते हैं, बिकॉज इंडियन कल्चर हैज ऑलवेज बीन डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिशर्स कल्चर। दे डेयर टू राइट डियर सर, मगर हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में संस्कार कुछ अलग है, दैट इज वाई वी डोंट कैरी ऑन दोस। तो हम डियर सर लिखने में थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि दे आर माय एम्प्लॉयर्स, और एम्प्लॉयर को हम डियर करके लिखें, ये इंडियन कल्चर थोड़ा एक्सेप्ट नहीं करता है। सो आई सजेस्ट यू दैट यू मस्ट राइट सर or respected sir. Both are applicable. Better you just write sir. After that a comma, and then start from left side, beginning of the sentence. I am. Are you writing? Pragati, are you writing? Yes, sir.
Okay, start after the comma left side beginning. I am formally notifying you that I will be tendering my resignation from dash डैश इसलिए मैं डालूंगा कि मैं अज्यूम कर एक एप्लीकेशन लिख रहा हूं, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मेरी परिस्थिति है तो मैं लिखूंगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश जीईसी वैशाली। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के जिस पद पर हैं यू विल राइट दैट। सो फ्रॉम ए लॉन्ग डॉट फुल स्टॉप। My last day will be June 30, 2021। एक बार फिर से समझाना जरूरी होगा कि कोई पॉलिटिकल रेजिग्नेशन आप नहीं कर रहे हैं कि रूठना मनाना चलेगा। आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, आपके अंडर में असाइनमेंट्स हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए आप जिस संस्था में भी काम कर रहे हैं, जिस इंटरप्राइजेज में काम कर रहे हैं, जिस कॉलेज में काम कर रहे हैं, उनको इसकी सूचना दीजिए। तो साफ लिखिए कि मैं औपचारिक रूप से क्या करने वाला हूं, पद का त्याग करने वाला हूं। किस पद का? इस पद का। कब से? तो ये भी बता दीजिए कि मेरा लास्ट वर्किंग डे क्या हो, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन जस्ट एज्यूम मैं अपने बारे में बताता हूं, मैं अभी रेजिग्नेशन टेंडर कर दूं, विल इट बी एक्सेप्टेड? लगता है कि ये अच्छी बात होगी ना, संस्था के लिए अच्छी होगी ना मेरे लिए अच्छी होगी, क्योंकि आई हैव टेकन एन असाइनमेंट टू टीच यू ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एंड इट इज नॉट इन ए कंप्लीट फॉर्म। तो मैं उनको सूचित करूंगा कि मैं अंतिम दिन 30 जाऊंगा या पढ़ाऊंगा। अब इस बीच उनके पास दो रास्ते हैं। वन मैटर इज दैट दे शुड मेक ए प्रॉपर अरेंजमेंट इन 25 डेज। उनके पास 25 दिन है, प्रायर मैंने कह दिया है। ऑब्वियसली द इंस्टीट्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज मी, और तो आप ये लीजिए कि आपका अंतिम दिन क्या होगा। ये अंतिम दिन आपको फर्स्ट पैराग्राफ में डाल देना है। हालांकि इसके बाद सेवरल क्रॉस विल गो। हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन ये कहे कि व्हाई डोंट यू फिनिश द फर्स्ट semester and after that you take this decision. I have taught almost 65% of the syllabus, only less than half part is remaining, please finish it and thereafter quit this. हो सकता है वो ऐसा भी रिक्वेस्ट करें, तो आप उनको प्रायर बता दीजिए कि इस महीने में मैं पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि उनका ये भी इंस्ट्रक्शंस आए कि इस महीने में आप क्लासेस बढ़ा लें, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लें और सिलेबस को कंप्लीट कर दें, ताकि इंस्टीट्यूशन को कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टूडेंट को कोई दिक्कतें ना आए। लाइक दैट। देखें, चेंज द पैराग्राफ। I never imagined that I would have to leave. I never imagined that I would have to leave dash dash dash। मैं फिर कहूंगा कि ये इन्वेंट करना पड़ेगा आपको, किस पद से कहां से त्याग करना। मेरा केस होगा तो मैं लिखूंगा जीईसी वैशाली।
comma, but due to the relocation of my फिर रीजन बनाना होगा, मैं दूसरा रीजन दे रहा हूं, ऑफ माई वाइफ्स वर्क टू कोई जगह दे दें, बैंगलोर, कॉमा, आई हैव मेड द डिसीजन with my wife to move up to Bangalore as a family. But due to the relocation of my wife's work to, अगर अब्रॉड देना है तो न्यूयॉर्क, इनसाइड देना है तो दिल्ली या बेंगलोर कुछ डाल दें, कॉमा, I have made the decision with my wife to move up to जो पहले लिखा है वही प्लेस लिख दें, अब्रॉड लिख रहे हैं तो न्यूयॉर्क, और अगर इनसाइड लिख रहे हैं तो दिल्ली, बैंगलोर, जो भी लिखना है लिख दें, as a family. सेकंड पैराग्राफ में आपको उनके साथ कुछ भावनात्मक रिलेशन बताते हैं, क्योंकि रेजिग्नेशन शोज कि उन्होंने आपको कहीं हटाया नहीं है, बल्कि आप हट रहे हैं. इट अगेन शोज कि आपने इतने दिनों तक काम किया है, इज्जत पाई है, और आप उस पद को छोड़ रहे हैं. ये भी इमेजिन कीजिए कि आपके जाने के बाद आपका विकल्प ढूंढना, उस विभाग को फिर से एस्टैब्लिश करना, फिर उसी मकाम पर लाना एक टायरिंग काम हो. थे आप सर्टेन डिपार्टमेंट देखते थे, आप सर्टेन काम करते थे जो अब दिक्कत करे, तो आपको उनको सबसे पहले अफसोस के साथ देना होगा कि मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था, मैंने कल्पना भी नहीं की थी, मैं काबू ख्याल में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे जीईसी वैशाली छोड़ना होगा. लेकिन चूंकि मेरी फैमिली रिलोकेट हो गई है, रीजन डिपेंड्स ऑन यू. बहुत बूढ़े आदमी हैं तो बच्चों का हवाला दे सकते हैं कि माई 2 sons have already settled in New York and earning much and handsome salary there. They are calling me. मेरे दोनों बच्चे हैं और वाइफ नहीं है, वो दोनों न्यूयॉर्क या अमेरिका में सेटल कर गए हैं, और बार बार मुझे कहते हैं कि आप यहाँ आइए और हम लोग आपकी देखभाल करेंगे. दैट कोई रीजन बनाए. ऐसे इमीडिएट रीजन जो यंग लोगों के साथ भी, दैट इज द काउज ऑफ द स्पाउस. आप भी वर्क कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी वर्क कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज इन इंजीनियरिंग कॉलेज बैंगलोर, यू आर इन इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार, और आप ऐसी परिस्थिति में ये डिसीजन ले रहे हैं, इतनी दूरी है कि हम लोग साथ साथ रह ही नहीं सकते, और मजबूरी है कि अगर हमें आगे फैमिली में एक साथ रहना है, देखभाल करनी, तो मुझे ये डिसीजंस लेना होता है. और उसको आप एक्सप्लेन करें कि जस्ट टू लिव विथ माय फैमिली, ऑब्वियसली विथ माय वाइफ एंड चिल्ड्रन, आई हैव टू मूव हियर बिकॉज आई हैव लेफ्ट अलोन हियर. मेरा बच्चा
मेरी वाइफ सब बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। आई एम ओनली हियर। मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है। एब्रॉड है तो आप लिख दीजिए अमेरिका या किसी कंट्री के बारे में। ये इसलिए मैं बदल बदल के बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आने के बाद इट लुक्स इनडिसेंट दैट ऑल ऑफ यू राइट द सेम रीजन। तब बड़ा खराब लगता है कि बंडल का बंडल सेटल कर गए, न्यूयॉर्क में है, एवरीबॉडी विल राइट न्यूयॉर्क, एवरीबॉडी विल राइट अमेरिका, एवरीबॉडी विल राइट द काउज ऑफ वाइफ, एवरीबॉडी। नहीं, ऐसा नहीं। हमें थीम समझ लेना है कि काउज कैसे बनाए जाते हैं। इसको हम अलग अलग ढंग से इन्वेंट करेंगे ताकि आपके आंसर्स डिफरेंट नजर आए और आपको अच्छा लगे कि इन डिफरेंट आंसर्स को आप करेंगे। एंड change the paragraph. If there is if there is anything that I can do for the dash dash dash। मैं फिर कहूंगा कि ये इमेजिन क्वेश्चन है। मैं लिखूंगा तो लिखूंगा कि फॉर द इंस्टीट्यूशन IE गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, कॉमा, let me know and I would be more than willing to help out। अनुराधा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगी। ये है कि इंस्टीट्यूशन में काम किया है, आप जा रहे हैं और आप बड़े सीनियर जिम्मेदार आदमी हैं। यू आर वेरी वेल नोइंग कि आप आने के बाद कई समस्याएं आएंगी। मान लेते हैं कि आपको इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करते हुए इस असिस्टेंट प्रोफेसर को ट्रांसफर करा के ला देता है या अपॉइंट कर लेता है, इवन देन उसको दिक्कतें आएंगी। तो आप सबसे पहले लिखिए कि अगर मेरे जिम्मे या अगर मुझसे या मेरे व्यक्तित्व से किसी तरह की कोई जरूरत पड़े, मैं किसी तरह के आपके काम आ सकूं संस्थान के, मेरी कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे जानने दें और मुझे खुशी से भी ज्यादा खुशी होगी और मैं हद से ज्यादा चाहूंगा कि मेरी खुशी बहुत बढ़ जाएगी अगर हम कुछ आपके लिए कर सके। इसके लिए मेरी हार्दिक इच्छा है। आई मोर देन विलिंग, मतलब दिल चाहना कहते हैं, चाहने से भी ज्यादा मैं चाह रहा हूं कि अगर मेरी कभी कोई मदद की जरूरत पड़े, आई विल बी हियर। ऐसा हो सकता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू, मैं बेंगलोर शिफ्ट कर जाऊं या दिल्ली चला जाऊं, मैं अमेरिका चला जाऊं या लंदन चला जाऊं, नेट के लिए मैं उतनी ही दूर पर हूं जितनी दूरी पर यहाँ हूं। इफ दे थिंक कि नहीं सर बाकी क्लासेस भी आप कर लेते, ऑनलाइन ही कर देते तो लड़कों के अच्छा होता, ये संस्थान रिक्वेस्ट करे, इसको आप राइटिंग में लिख कर दीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मेरे जाने के बाद मेरी कभी कोई जरूरत पड़े, छोटी या बड़ी, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी होगी हमको ये जानकर कि मैं संस्थान के किसी काम आऊं। एंड द लास्ट paragraph, I have truly enjoyed my work here and I would like to thank you
for the opportunity, for the opportunity, for the opportunity that you have given, that you have given me to work here, to work here at dash dash dash. मैं लिखूंगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली। आपका केस अलग हो सकता है, दैट इज वाई आई विल नॉट से सेम मैटर। ध्यान से सुनिएगा रवि, आई एम सेइंग कि आपने एक संस्थान में काम किया है तो विदाई के समय में हमेशा आंसू ही छलकते हैं। आपने वहां फाउंडर फैकल्टी की कैपेसिटी में पढ़ाया है, लाइक मी, मैंने फर्स्ट बैच से 2K18 से पढ़ाई शुरू की है वहां, तो ऑब्वियसली मुझे आखिर में कुछ जज्बाती बात लिख ही देना है और लिखा ही जाएगा हमसे कि मैंने हकीकत में, सच्चाई में यहाँ वर्क को एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि हमको मिंटू जैसे स्टूडेंट मिले, रवि जैसे स्टूडेंट मिले और आप सारे लोग मिले जिन्होंने सम्मान दिया, ध्यान से पढ़ा, मेरी इज्जत बढ़ाई। तो ऑब्वियसली उसका थैंक्स आपको करना होगा कि मैंने वाकई यहाँ वर्क जो किया वो एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि आप रिजाइन कर रहे हैं। मैं फिर एक बार कहूंगा, रेजिग्नेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिट्रेंचमेंट। आपको नहीं वो हटा रहे हैं, आप खुद उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे, मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, कृतज्ञता पेश करूंगा, थैंक्स करूंगा कि आपने मुझे एक बहुत बड़ा सुअवसर दिया, खास तौर से ऐसा सुअवसर कि मैंने इस सम्मानजनक और सम्मानित संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की कैपेसिटी में काम किया, बच्चों को पढ़ाया। आई रियली एंजॉयड देम। मेरा हर क्लास मेरे लिए बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए हमेशा सम्मान की बात होगी कि मैं आपके बीच में 3 साल 4 साल जितना भी आपने पढ़ाया, आई शेयर्ड, imparted my education with you। और अंत में अकॉर्डिंग टू द न्यू कल्चर लेफ्ट में लिखेंगे, सिंसियरली योर्स, SINCERELY, योर्स, YOURS। नीचे दस्तखत करेंगे, आफ्टर दैट अंडर ब्रैकेट में नाम लिख देंगे और डिटेल्स दे देंगे। हालांकि आप फॉर्म लिख चुके हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं, जस्ट सिग्नेचर विल डू दैट। आपने डेट ऊपर ही में डाल दिया है, उसकी भी जरूरत नहीं है। फॉर्म में सारी कहानी लिख दी है, दैट इज नॉट नीडेड। नाउ यू आस्क मी, मिंटू, like to ask? Will you like to ask? Any one of you? No. Thank you very much. I think you understood that resignation is different drafting. It is very close to other drafting like job application, like complaint letter, like जनरल लेटर्स। बस किन किन बातों का ध्यान रखेंगे मैंने हिंदी में भी बता दिया कि लेटर ऑफ रेजिग्नेशन हैज ऑलवेज बीन डिफरेंट फ्रॉम अदर। जब कभी भी कोई चीज क्विट की जाती है तो इन तीनों, चारों, पांचों पैराग्राफ पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान इस बात पर देना है कि हम औपचारिक रूप से तुरंत का तुरंत नहीं, एंड ऑफ द मंथ का ऐलान करें। जिस मंथ में भी हमें रेजिग्नेशन करना है उस मंथ के एंड तक जरूर काम करें। तो सैलरी को भी अगर हम जैसे, तो आई मस्ट वर्क टिल 38th ऑफ द जून। दूसरी बात के आपको अफसोस जाहिर करना, यू आर रिजाइनिंग, यू आर नॉट बीइंग क्विटेड।
आपको वो फायर नहीं कर रहे हैं, आप खुद जॉब छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको काउज देना पड़ेगा कि आप इतनी अच्छी नौकरी, इतने अच्छे संस्थान और इतने अच्छे वर्क कल्चर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ये सेकंड पैराग्राफ होगा, आप उसमें पूरा जस्टिफाई कर दीजिए कि मेरी जिंदगी में आई हैव लेफ्ट अलोन, माय होल फैमिली हैज सेटल्ड सच एंड सच प्लेस, they are calling me at this stage, I cannot live all alone, अकेला मैं नहीं रह सकता, सीनियर हूँ, बूढ़ा हूँ, या कोई और काउज ले दे, दैट इज वाई आई हैव टू, मैं सबसे बिछड़ जाने के कारण, फैमिली के रीलोकेशन के कारण, अकेला रह जाने के कारण, किसी अपनों का साथ न मिलने के कारण उस जगह पर जा रहा हूं जहां ऑलमोस्ट मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स सेटल कर चुके। ये काउज आपको इसलिए देना होगा बिकॉज आप इतनी अच्छी जॉब छोड़ी क्यों। थर्ड में आपको ये लिखना होगा कि आप अचानक छोड़कर जा रहे हैं, तो को इतनी इज्जत मिली है, इतना सम्मान मिला है, आपके जाने के बाद हो सकता है फाइल मांगा जाए, हो सकता है टर्मिनल टेस्ट के मार्क्स फाइल मांगे जाएं, हो सकता है अटेंडेंस मांगे जाएं, हो सकता है कुछ नोट्स मांगे जाएं, हो सकता है कुछ वीडियोस मांगे जाएं, सेवरल थिंग्स कैन हैपन। मैं अपनी बात कह रहा हूं, इट विल चेंज, ये भी बदलेगा। तो वहां पर आपको जरूर लिखना होगा कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं संस्थान के किसी भी तरह से कहीं काम आ सकता, अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आई एम गिविंग माई एड्रेस डिटेल, email ID, mobile number, and those things by which you can contact me immediately। वहां पर आप लिख दें कि आपके जाने के बाद कोई समस्या आए, कहीं कोई दिक्कतें आए, आपके जूनियर ही आपसे पूछना चाहे कि सर ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं या छूट गया है, इफ यू शुड बी रेडी, सर मेरे पास टाइम है, यस इस टॉपिक को पढ़ाया था, ये टॉपिक अभी छूटा हुआ, लाइक दैट, आपको ऐसा कुछ लिखना होगा। और आखिर में आपको अफसोस देना होगा मुझे इस मेमोरेबल सिचुएशन जिसने मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, पढ़ाया, सम्मान पाया और इतने अच्छे वर्क कल्चर, इतने अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाया कि मुझे ये हमेशा याद रहेगा और जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। आई कैन नेवर फॉरगेट दिस, आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। और नीचे सिंसियरली योर्स करके योर टाइम इज गेटिंग अप, एनी वन ऑफ यू who want to ask me any question related to it? ठीक है, आपका एक और रिक्वेस्ट मुझे याद है, मैं जरा टॉपिक सॉल्व कर लूं तो चलूंगा। वंस यू हैव requested me to teach cyber crime, okay, cyber crime I did not, but I am already having this in my mind that some of you or any one of you must have told me कि साइबर क्राइम पर एक ऐसे लिखा दीजिएगा, दैट इज इन माई माइंड। आपने काइनेसिस बोला है, ऑब्वियसली इट विल बी इन माई माइंड, मैं कोशिश करूंगा। होमोफोन्स आई डिड, और मुझे लगता है कि होमोफोन्स का मैंने आपको पीडीएफ भी दे दिया, अगर आपका छूट गया है तो अभी भी वो साइट पर होगा। Homophones are pair of words. Okay. If you have missed, search it on this group on which we are here. A special group for E and EC. This must be there. मुझे लगता है कि होना चाहिए। फिर भी चूंकि I have ओके तो ठीक है, पर्सनली आप हमसे पूछ ले, क्योंकि क्लास में तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि जो भी अनटच टॉपिक है उसको पहले कर लूं। ऑब्वियसली इस
मंथ में क्लास लेना है. जस्ट वी हैव I spent 5 days, 25 days are remaining. और 25 days में I will get several opportunities to teach. मैं खुद ही आपसे पूछ लूंगा कि भाई मेरा सिलेबस खत्म हो गया. Now you ask which topic I should. That has to be. अगर किसी का छूट गया है या आपको इंटरेस्ट है कि उस टॉपिक पर डिटेल से पढ़े, you can. कोई दिक्कत नहीं. Anything more? Thank you very much. Thank you very much. First of